آپ کے نزدیک تو ہو چکے ہیں نا جی. تو مرزا غوث صاحب اعظم تو سے کہتے کروا ہیں دیں. یہ اور قرون رک جا ثلاثہ کے رک بعد جا ہی ہو اور گئے رک تھے. جا نہ رک جا. او بھائی رک جا, کیوں گھوڑے پر سوار ہو؟ غوث اعظم سے کروا دیں کلیئر. اپنی بھائی کتاب میں غنیۃ گھوڑے الطالبین پر میں نہیں لکھ کر گئے سوار ہیں ہوں. وہ. آپ خود پھنسے غنیۃ ہوئے ہیں. الطالبین میں اور نہیں, مجھے غنیۃ بتائیں کہ آپ کے الطالبین میں لکھ لوگیوں کر میں گئے سے ہوئے اور ہیں آپ وہ. میں سے 13واں کون سا ہے؟ غنیۃ الطالبین میں لکھ کر گئے ہیں وہ 73. اور اپنا نام و نشان بتانا وہ وہاں اچھا کون سے میں ہو ٹھیک ہے تم. لکھ گئے ہیں ایک منٹ وہ, رکو تو نا. آپ کہاں سے آ گئے کیا پھر؟ جھوٹ لکھا صحیح لکھا؟ تو مجھے تو نہیں, ان جھوٹ کا لکھا اپنا صحیح فہم لکھا. ہوگا, میں مجھے تو نہیں بتاؤں گا پتا. کہاں سے آ گئے ہیں, تو کیوں فکر کر رہا ہے تو آپ بھائی؟ پھر پہلے 13واں کہاں پہلے سے آ غوث گئے, وہ تو اعظم پہلے ہی بچا ہو گئے اپنا تھے. بھائی. غنیۃ پہلے غوث اعظم, الطالبین میں پہلے غوث 73 لکھے اعظم ہوئے ہیں, بچا آپ بھائی کہاں سے پہلے آ گئے؟ اپنا. ایک منٹ رک, تیرا غوث اعظم بچا پہلے تو اپنا بھائی. تو پہلے ایک اپنے منٹ رک مرزا جاؤ. صاحب کو بچاؤ جو کہتے ہیں قرون ثلاثہ کے بعد ہو گئے تھے. ہاں تو قرون ثلاثہ سے پہلے ہوئے تھے. تو مرزا پہلے صاحب کو ہوئے تھے. بچاؤ نا. مرزا صاحب تک نہ جا ضیاء ایک اگر منٹ, الرسول، مرزا ایک صاحب منٹ. کو میری گل بچاؤ نا, سن لے. غنیۃ ایلو الطالبین پڑھو کو 73. بچانا ہے ایلو تو پڑھو, مرزا صاحب کو بچاؤ پہلے. ایلو پڑھو اوے 73 مرزا پڑھو. صاحب غوث تک اعظم نہ بچاؤ جا, پہلے میں تیرے اپنا. گھر تک پہنچ جانا پھر تو رونا ہے. نہیں ایلو غوث اعظم بچاؤ بھائی پہلے جڑے اپنا. تو حوالے مانگے ہیں نا جدو رانا ہے بھائی، کہ رانا تیرے بھائی، گھر رانا آنگے نا بھائی، تو یقین ایک کرنا منٹ ہے کہ رکے ہاں رانا پیو بھائی، خاموش. دھی دے نال اس ایک طرح منٹ کرنا رکے, ہے. رانا بھائی بھاگنے کا موقع ایک مل منٹ جائے رکے. گا. اے سن لے, ٹائم طے کر رہے ہیں آپ, ایک منٹ رکے نا جی رسول صاحب, صبر کرے نا ذرا. 5 بول پڑتے ہیں. سنیں اہل سنت ایک جماعت, خوارج 15 فرقوں پر مشتمل ہے, معتزلہ کے 6 فرقے ہیں, مرجعیہ 12 فرقوں پر ہے. ٹھیک ہے جی. شیعہ کے 30 گروہ ہیں, جہمیہ کے نجاریہ, زراریہ اور کلابیہ ایک ایک گروہ ہیں, مشبہ کے 3 فرقے ہیں. پس یہ کل 73 فرقے ہیں. اور یہ اہل حدیث کہاں گئے بھائی؟ یہ دیوبندی کہاں گئے؟ یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جھوٹی کر دی تم نے. کیوں بھائی یہ رسول بس جی ہوگی صاحب؟ بات. اچھا جو اصل سوال ہوگی ہے نا بات. اسے گول کر گئے آپ. میں نے کہا کہ بھائی آپ کے جو رحمت اللہ علیہ تھے اقبال صاحب, وہ کہہ گئے ہیں کہ امت جو ہے نا وہ نصارہ اور یہود میں وہ ہو گئی ہے مشابہ. ٹھیک ہے نا. ان کے متعلق کیا کہنا ہے آپ کا؟ وہ تو لکھ کے چلے گئے. انہوں نے کسی کو دیکھا تھا اعلانیہ زنا کرتے ہوئے؟ ہو گیا جی, ہاں جی, کمپلیٹ ہوگی بات. ہاں اگر بولیں یہ جلدی سے. وہ 73 پہلے ہو گئے ہیں, اگر یہ اقبال 73 صاحب پہلے ہو بتاؤں گا گئے میں نے ہیں, تو میں دوں گا نا آپ اس کا 73 کہاں جواب سے ہو آپ گئے؟ کو. میں بتا رہا ہوں نا اقبال صاحب کے بارے میں بتائیں پہلے. وہ جو سوال پینڈنگ پڑا ہے ان کے متعلق کیا کہنا ہے؟ جن کے مطلب وہ تو شاعر ہے نا, انہوں نے شاعری میں ایک تو بات کیا, اس کا تو میں کیا نے کہہ جواب دیا؟ دینا. غلط لکھا صحیح لکھا؟ شاعر نہیں بھائی, شاعر اپنی غلط شاعری میں لکھا جو صحیح باتیں لکھا؟ بیان کرتے ہیں نا وہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, وہ تمثیلات ہوتی ہیں, تشبیہات ہوتی ہیں. ٹھیک کیا ہے نا. میں تمثیلات ہے, مرزا کیا صاحب کا شعر تشبیہات پڑھ ہے دیتا ہوں, بتائیے آپ نا. ہو بہو مان لیں گے. کیا تمثیلات ہے, نہیں, کیا میں مرزا صاحب تشبیہات کا ہے شعر پڑھ بتائیے تو دیتا ہوں, آپ صحیح. ہو بہو کیا مان لیں گے. تمثیلات ہے, کیا تمثیلات, کیا تشبیہات ہے میں پڑھ بتائیے دیتا تو ہوں, صحیح. آپ مان لیں کہ ہو کیا بہو ہے, میں پھر علامہ اقبال پہ کیا فتویٰ دے دوں گا کہ تمثیلات غلط اور کہا ہے. کیا تشبیہات ہے بتائیے تو صحیح. جناب میں آپ کے سامنے مرزا صاحب کا شعر پڑھ میں دیتا ہوں, آپ میں کہتے نے ہیں ہو آپ بہو نے ویسے ہی کہا ہے, کہ آپ میں نہیں, فتویٰ دے میری دوں گا بات علامہ سنیں اقبال پہ. حضرت. نہیں کیا تو نہیں میری بات کیوں سنے اب. میں آپ کے سامنے مرزا صاحب کا شعر پڑھ دیتا ہوں, آپ کہتے ہیں یہ جو کچھ لکھا وہ ہو بہو ایسے ہی ہے, پھر آپ علامہ دیجیے کہ اقبال پہ بھائی یہ سوال کر لیں. تمثیل کس سے؟ علامہ ہاں جی, اقبال پر ہی سوال کر رہا ہوں آپ سے میں کہ بتائیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان میں کے شعر وہی میں عرض کر رہا ہوں تمثیلات ہے, کہ انہوں نے تشبیہات ہے. شعروں میں بات میں کی, اگر شعروں کا کس سے مینوان مطلب لینا ہے تو مرزا صاحب کا شعر تو پیش کر کیا دیتا ہوں, آپ مطلب ہے وہ مینوان بتا مطلب دو دے نا. دیں تو ارے میں علامہ کیا اقبال بتا, پہ فتویٰ ارے دے دوں گا. کیا مطلب ہے وہ بتاؤ نا آپ. کیا مطلب ہے بھائی وہ جو بتاؤ بھی نا آپ. دوسرا تیسرا مطلب ہو, جب وہ بات ہی دو نہیں ہونی بتاؤ نا, ثابت وہ تو پھر ان دوسرا پہ بات تیسرا کرنے کا چوتھا فائدہ. پانچواں کالا پیلا نیلا ہرا گلابی جو بھی ہے وہ بتاؤ تو صحیح. آپ بتا دیں مجھے, کیا میں ہے شعر مطلب پڑھ اس کا؟ دیتا ہوں, آپ کہتے ہیں میں کہ کیوں مینوان بتاؤں؟ ایسے ہی ہے. تیرا رحمت اللہ علیہ بھائی, وہ اس کا مطلب میں ادھر آپ کے بتاؤں. مرزا صاحب کا شعر ہے, وہ آپ کہتے ہیں کیوں مرزا بتاؤں, صاحب کی, ادھر علامہ مرزا صاحب اقبال کے کا شعر شعر کا ہے, آپ جواب کہتے دینا ہیں میرے نہیں ذمہ بتائیں ہے. اس پہ. مرزا صاحب کے جواب, چلیں مرزا اب صاحب کے سنیں, شعر کا جواب دینا میرے سنیں ایک ذمہ ہے. منٹ, سنیں جی. آپ اپنے رحمت اللہ علیہ کا دو. ٹھیک ہے. بھائی میں نے سوال کیا, ایک منٹ سنیں, بات سنیں ادھر ذرا, صبر سے بات سنیں. سوال میں نے کیا تھا نا آپ سے پہلے, جب میں نے اس کے اوپر آپ سے جواب مانگا آپ ادھر 73 کی طرف بات لے کر چلے گئے. اب میں نے دوبارہ آپ کو کھینچ کر وہیں لے کر آیا کہ بھائی یہ اقبال صاحب کو بھی چھڑاؤ, یہ بھی گرفت میں پڑے ہیں. آپ پھر مرزا صاحب کی طرف بھاگنے لگے. مرزا صاحب نے شعر لکھا. بھائی ان کے اس شعر کا کیا مطلب ہے, وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے اپنے شعر میں؟ تمثیل ہے, مشابہت ہے, مجھے پتا ہے. وہ امت کے لوگوں کو تمثیلی طور پر مشابہت دے رہے ہیں یہود اور نصارہ سے. آپ بتائیے کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کی بات میں نے مان لی کہ ہاں اس میں تمثیل ہے, مشابہت ہے. میں بھی عین ہونے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. انہوں نے مشابہت کے طور پر ہی یہود اور نصارہ کہا ہے امت کو. بتائیے کیا مطلب ہے اس میں, کیا تمثیل نظر آئی آپ کو, کیا مشابہت نظر آئی؟ چلیے جواب دیجیے.
यार माइक तो ना बंद किया करें, फिर माइक बंद कर देते हैं उधर तो बात नहीं सुनते हो ना आप, जब इसका बात मतलब नहीं पूछते सुनते हैं हो ना। अल्लामा इकबाल के शेर सुन लें, अल्लामा इकबाल के शेर का मतलब ये है जी। ये जनानी सुन वाली भी ले। हंसी ना हंसो, हाँ सुनाओ। अच्छा नहीं हंसता सुनाओ। यार, सुन तो लो, अब ओए हौसला तो करो। अल्लामा इकबाल के शेर का मतलब ये है जी कि जिस तरह जो हाँ? सारा पैंट शर्ट पहनते हैं, मुसलमानों ने भी पैंट शर्ट पहनना शुरू कर दिए। हेलो जी, अच्छा जी, आगे बात करो। वो तमद्दन की भी बात कर रहे हैं भाई। हाँ करो गाल, तमद्दन जी तहजीबो तमद्दन जी आंदा ना जी पैंट शर्ट। आगे बात करो। पैंट शर्ट तहजीब व तमद्दुन वज़ाक़ता में आता है होगी गाल। वो वज़ाक़ता में आप आता मुझे है। बताएं, एक मिनट जी, एक मिनट, आप मुझे भी जवाब देना जी। आपने कहा जी कि सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये जनाब क्या उसको कहते 73 फिरके बता दिए, ऐसे ही कहा जी आपने। एक मिनट रुको जरा यार। ओ भाई आप बात भी सुन ले। रुकते जाओ यार भाई। हाँ जी, दोस्तों। अल्लामा इकबाल के शेर का मतलब ये है के जो ना समझे। कि पैंट शर्ट पहनने की वजह से मुसलमान दुनिया से नाबूद हो गए हैं, ठीक है। और हम शोर सुना करते थे कि मुसलमान कभी हाँ, बिल्कुल धोती ऐसे लुंगी ही है, पहना ऐसे ही है, करते थे। बिल्कुल कि ऐसे ही है। मुसलमान कभी धोती लुंगी कुर्ता पहना करते थे, ठीक है। हाँ, इन बिल्कुल लोगों ऐसे। ने नबी पैंट पाक और शर्ट की पहनना सुन्नत शुरू है कर कुर्ता दिया है। पहनना। ऐसे ही सभी है। भाई बात एक बस होगी बात, अब अगली सुननी है या नहीं? मैं एक शेर सुन ले वो मुझे। सुननी है अब अगली या नहीं, सुन भी लो अब सैफी साहब। सभी भाई एक शेर मेरे जहन में आया। कहता है समझ के जो ना समझे उसकी समझ को कौन समझे। पैंट शर्ट तो नहीं पहन रखी सभी भाई एक मिनट, सभी भाई एक मिनट। सैफी साहब आपको तकलीफ हो रही थी कि ये अलामा यार सोच साहब एक मिनट सुनते रहो। समझ के जो ना समझे उसकी समझ को कौन समझे, उसकी समझ को ऐसी समझ है जिसकी समझ को अल्लाह समझे। इसकी समझ को भी तमद्दन पैंट सूट, सुभान अल्लाह। ठीक हो गया। ये मनाज़र है। ओ यार मौत से मुराद बीमारी हो सकती है, यहूदी करार जर्द दे दिया चादरों से गया। मुराद बीमारियां हो सकती हैं, तो तमद्दुन से मुराद पैंट शर्ट नहीं हो सकती। ना फे बोलना सी हैं? वो करके नाच क्यों गया था? वो भाई नस कहाँ से गए, जहाँ मौत से मुराद फतह, जर्द चादरों से मुराद बीमारियां, लुध से मुराद लुधियाना हो सकता है, तो तमद्दुन से मुराद पैंट शर्ट नहीं हो सकती। कुछ तो अपने मसीह मौत का भी ख्याल कर ले, जहाँ लुध से मुराद लुधियाना है, जहाँ कमिश्न से मुराद कादियान है, जहाँ फतह से मुराद मौत है, वहाँ तमद्दुन से मुराद पैंट शर्ट नहीं हो सकती। इसने अल्लामा साहब एक मिनट, ये बड़ा लंबा मारा ना जरूर चादरों से, तो जलील होके गया था। फिर कहता मैंने तो ये बात ही नहीं की, रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी हुई है, याद है जी। हाँ मिले के आए थे बात तो ये कर दी, बात तो ये है जनानियों की तरह जर्द चादरों से मुराद बीमारियां हैं, तो कोई मसला नहीं है, लेकिन तमद्दुन से मुराद पैंट शर्ट नहीं होता है। यहाँ क्या मसला है आपका? मेरी बात आ रही है। मर जाना, मौत से मुराद फतह हो सकती है, तमद्दुन से मुराद पैंट शर्ट नहीं हो सकती। आपका नाम रख दिया गया भाई। दमिश्क से मुराद कादियान हो सकता है, लेकिन तमद्दुन से मुराद पैंट शर्ट नहीं हो सकती। लुध से मुराद लुधियाना हो सकता है, लेकिन तमद्दुन से मुराद पैंट शर्ट नहीं हो सकती। खेत से मुराद मसीह इब्ने मरियम से मुराद गुलाम अहमद इब्ने चिराग भी हो सकता है, लेकिन तमद्दुन से मुराद पैंट शर्ट नहीं हो सकती। ओ यार जिया रसूल साहब कसम खुदा की यार सारी मट्टी पलीन कर दी आपने। इकबाल जिंदा होता तुम्हारी ये तकरीर सुन के फिर मर जाता, वो फिर मर जाता था। मौका नहीं दिया इसको पूछना था यार ये गलत बात है, मेरे साथ ज्यादती है उमर भाई होस्ट के साथ। इस अकेले बंदे को मैं अकेला हैंडल कर सकता हूँ, मुझे समझ नहीं लगती सारे क्यों बोली जा रहे। चले कोई बात नहीं, औकात है कि ये सैफी भाई जैसे बंदों के साथ बात करे, है इसकी औकात? इसके पल्ले कुछ है? मारो गोली इसको, इसे दबा करो, चेंज कर दे। जिया रसूल तो जिया छितरोल रख दे या जिया फजूल रख दे, हर जगह छितरोल। बेशर्म शख्स है, यकीन करो कि दो ज़ंबे टांगे दी। अच्छा व्हाट्सएप इतना लगे जिद्दां कल ਉਹਨੇ ਫੋਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ।
तू मेरे मरण की गल की है, तू हुण अरे बयान यार कर। नासिर भट्ट भाई यार ना यार झगड़े खुदा के वास्ते ने चले जाना है फिर मैंने यार खामोश रहो खुदा के वास्ते। इतना पेट भर के हंसे हैं आज शायद ही मेरे ख्याल से 15 साल में कभी हंसे हो। मैं लोग ला रहे सी, मैं कह रहा चलो शौक पूरा कर ले। मैं ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ कसम ਕੀਤੀ से ਮੈਂ यार। ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ को मैं अड्डा ਤੇ नहीं कि मैं कोमे च बैठे हुआ तो मुझे समझ ना आवे। यार बताओ यार ये किस काफी किस्म साहब, की जाहिल इस कौम है बंदे यार, ने- ये इसे पता ही कुछ नहीं है और आ जाता है मुंह चुक के। इसके सामने एक हदीस पेश कर दो, हैं हदीस नहीं सुनी, चेक करूंगा, नंबर बता दो। अजीब किस्म का यार। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ इस बंदे ने इसको हदीस किसी नहीं हदीस का बताया, पता नहीं नहीं, पढ़ियां जी। इसे किसी हदीस का पता नहीं, इधर आके मन ना जिया पैंट शर्ट, हदीस जिया भाई पैंट शर्ट वाले एक मिनट कोई ये होने से व्हाट्सएप और नाम रखा है इसका जिया भाई पैंट शर्ट वाले। साकिब भाई बात कर सकते हैं एक मिनट? जी करें अगर करें आपको करें भाई करें। हाँ जज़ाकल्लाह। ये इतना बेशर्म बंदा है, बेशर्म तो मैंने वैसे अखलाकन कह दिया है, यहाँ इसके लिए और कुछ लफ्ज लगता है। इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी हुई है। ये 2 जर्द रंग की चादरों पे कालू के साथ इसकी बात हुई थी, 2 जर्द रंग का बताया तो कहता है मैंने तो सही मुस्लिम की थी। ग्रंटर लेके कौन सा आया? वो रेलू कट्टा अमर नजीर। अच्छा 10,000 का नाम रखा हुआ था, दोनों मुकर गए। अब ये बेशरम बंदा आके फिर वही बात जिससे ये बेइज्जत हुआ हो फिर आके करे तो उसे बेशरम और बगैरत नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बेशरम लोग हैं, जूते खा के एक ही बात पे दूसरे दिन वही बात कर रहे होंगे। देखना तो शुरू नाम में रखो झूठ मुतमिन बोला बगैरत इसने, है, मुतमिन बगैरत है। ये खातमुल बगैरत है ये। इसने हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के ऊपर झूठ बोला। मैंने कहा लगा स्कैन, फौरन अपनी बात पलटी एकदम। 73 फिरके जो हुए थे वो कुरूने सलासा के बाद ही हुए थे। अब हम तो 73 से मुराद नहीं लेते ना काउंटिंग। 73 का मतलब ये था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत तादाद की वजह से इसको इस्तेमाल किया और फरमाया कि इस कसरत तादाद में एक गिरोह ऐसा होगा जो जन्नती होगा। समझ गए? अगर इसे तुम काउंटिंग करो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तो जो है ना वो झूठी पड़ जाएगी। गौसे आजम पड़ गया था अभी इनका खतरे में, सारी करामतें धरी की धरी रह जानी थी। बल्कि हो सकता था कि एक करामत, हाँ इसीलिए तो नहीं दे रहा था ये जवाब। उधर पहले उसको यही क्या नाम जो है ना वो इकबाल को फांस लिया, इधर गौसे आजम जो है ना वो पकड़े गए। इसको अच्छे तरीके से पता था मैं इससे सवाल क्या पूछने लगा हूँ। सैफी भाई दूसरा ये है, इससे जरा मैं पूछने लगा था एंड पे कि भैया आप कहते हो नहीं हुए, आपको पता ही नहीं है, इनके झूठ चेक करें। तो जो तुम्हारे फुफड़ खत्म नबूवत करके आए थे, अखबारों में लिख रहे थे 72 का इजमा, वो कहाँ से आए थे? 72 का वो कहाँ, वही अभी तो देखते हैं कितनों को रगड़वाता अगला पूछने लगा शाह वलीउल्लाह मोहब्बत से शुरू होता लगा था इससे, और इसके रजा खान पर लाकर खत्म करता, एक एक के जूते पड़वाता इसके जितने भी उलमा गुजरे हैं। इन्हें अच्छा, पता ही नहीं है हम कुछ। कर देंगे, आप लोगों ने बोलते ही रहना है। ठहर जाए जरा, चुप करें सारे। मुझे एक सवाल पूछना है आप लोगों से, नीचे वालों से भी और ऊपर वालों से भी। मजा आया कि नहीं आया आप लोगों को? मैं कहना इंदा मजा जिंदगी च नहीं आया आज आया। कसम खुदा की बड़ा खुलकर हंसा हूँ यार मैं। आप लोग कहते हैं ना कि ना लो ना लो ना लो, बाज दफा इनको बड़ा खुलकर लेकर हंसी ऊपर है। बिठा के जूतियां मारने का जो मजा आता है ना, वो आप मेरे से पूछें। मैंने ऐसे ही नहीं अपनी नींद बर्बाद की सारी रात की। 17 घंटे हो गए ना जाग रहा हूँ, इसीलिए जाग रहा था। मैंने कहा कोई कुछ ना कुछ तो फायदा होगा जागने का, ये फायदा हुआ मुझे। लूले लगड़े पोलियो दी लत्तां वाले जेड़े ना खतमे नबूवत दी पैरा दे रहे हैं, इत्थे आके लत्तां अच्छा। नहीं मिलदियां उन्हां दी। इसकी ये अच्छा तशरीह हमें है कह ना, रहा था, हमें ये कह रहा था कि आप उम्मत नहीं हो तो जाके शोर करे ना अपने कमरों में, हमें वहां क्यों उम्मत से निकाल रहा था? ये मुनाफिक लोग। पहले मीर साहब को एक बात कर रहा था, जी आप कुरान का हवाला क्यों दे रहे हैं? जब कहा कि मिर्जा साहब का क्यों हवाला देते हो, तो फौरन वो बंदर की तरह ना कलवटी मार गया। फिर आपको यदि आप अपनी उम्मत नहीं है तो अगर उम्मत समझते हो तो ऐलान करो, वो बुल्लड़ जो है अमर नजीर, उसे भी बोलो, वो भी कहे कि ये उम्मत है, हमारा इख्तिलाफ है इनसे। क्या ख्याल है वैसे, दोबारा आएगा सैफी भाई? अरे बेगैरत किस्म का इंसान है। इतनी तो किसी डीओजी की भी हो तो वो भी जौन सा है वो अपनी पोस्ट छोड़ जाता है। कमर साहब उसके मिसाल देखे उस उसे कुत्ते की सी कितने है वो जिसे घर से डंडे मार के भगा सर देते मैंने हैं ना भी जब वही वो घर कहा, में घुसता डीओजी है। उसी को कहते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ उसे पैसे जो देखे कितने वो तोहफे पड़े हैं, उसके लिए वो उससे भी ज्यादा बन सकता है बरेलवी। नहीं अभी भी कहेगा अमर नजीर मेरा भाई है।
हाँ, मुशाबियत में जब फसोड़ी फंसी इसकी, देखें कैसे वो खेती, वो जैसे अनाज उगाती है वैसे ही औरत जो है वो बच्चे पैदा करते हैं। मैंने कहा हल तो नहीं चलाता ना उसके ऊपर भाई, तू मुशाबियत में ऐन मांग रहा था ना, वो मसीह आया था बनी इसराइल की तरफ, तो मसीह भी बनी इसराइल की तरफ आना चाहिए। मैंने चलवा दूंगा अभी तेरी औरतों के ऊपर हल बेटे में, और निकलवाऊंगा गन्ने। सैफी भाई आप शरीर हो गए हैं, टिकटॉक ने आपको शरीर बना दिया, वैसे मैंने हिसाब लगा लिया। राणा साहब यार देखो जैसा देश वैसा बेस, सीधी है बात। मैं क्या है, जो बंदे ईद वाले दिन फौत हो के अपने घर ਦੀ ईद ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਖਰਾਬ ਉਸੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜਦੋਂ ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਜੰਮ ਕੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। इसी से लग कहना नहीं चाहिए, लेकिन इसकी बेशर्मी का अंदाजा। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੀ ਪਟੜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਢੇਰੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਰੂੜੀ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਗੰਦੀ ਜੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਲ ਤੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਰੀ ਹੈ, ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। इसकी बेशर्मी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। भट्ट साहब के पहले आया मुझसे गुफ्तगू करने के लिए, या बनी आदम इम्मा यातिन्नकुम रुसुलुम मिनकुम पे, वहां जलील होकर गया, पहली नशिस्त में ही जलील हो गया। ये इसने अपनी बात को साबित करने के लिए 10-12 आयतें पीछे लेकर गया, कहा कि जी यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए। पढ़ना शुरू किया, जब इसे पता चला कि नहीं मेरा मुद्दा साबित नहीं होगा, ठीक है ना, एक आयत पर मैंने इसको पकड़ लिया, मैंने कहा यहाँ बताओ भाई खिताब माजी में हो रहा है कि हाल में हो रहा है। अब ये वहाँ पकड़ा गया, अच्छा जी वो ठीक है जो है ना वो टाइम हो गया है, इसे हम कल पर रख लेते हैं। वहाँ से जान छुड़ा कर भागा, अगले दिन आया, अगले दिन फिर रगड़ा इसको उसी आयत के ऊपर, 2 बार रगड़ा गया उस आयत के ऊपर। अकल पकड़ लेनी चाहिए थी, नहीं पकड़ी। अगली मर्तबा फिर आया, हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की तहरीरात लेकर कहता है कि जो मिर्ज़ा साहब ने जो है ना वो ये कहा है कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद जो है ना वो नबूवत ख़त्म हो गई। वहाँ रगड़ा गया, हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की तहरीरात पेश की गई वाज़े तौर पर। नहीं जी वो मुझे बाद के अल्फाज दिखाओ, मिर्ज़ा साहब ने कहा मेरे बाद। मैंने कहा भाई ये अल्फाज भी दिखा देता हूँ तुझे, वो अल्फाज भी इसको दिखा दिया, वहाँ रगड़ा गया। तसल्ली नहीं हुई अभी, कलेजे में इसके ठंडक नहीं पड़ी अभी तक, ठीक है ना। अपनी छाती पर मूंग दिलवाने के लिए हमेशा मुझे सवार रखेगा ये। अब फिर आ गया, ओ जी वो मौजू सिलेक्ट हुए थे आपके और हमारे दरमियान, उसके ऊपर गुफ्तगू करनी है। अब घर में जाके ये कहेगा कि छितर तो बड़े पे ने पर मैं पैसे बड़े कमा के लिया, पर मैंने छितर पोला बहुत होया। नहीं इसने वो कहना है, वो सॉन्ग कहना है, रोलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। ऐसा ढीठ बंदा है, फिर रिक्वेस्टें डाल के बैठा हुआ है। वही तो सुनने तो बैठे ने तो मजे लेने तो सुन रहा है ना, सुने। अच्छा इसमें से सियाना वो आमर जो है ना वो डसूजा आमर रजीद, वो सियाना वो ऐसों को आगे करके पीछे। मैं मिसेज राशिद को एक जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने एक कमेंट किया है, पहले भी किसी ने किया था कि इसको पागलखाने से क्यों निकाला या किसने निकाला, तो मैंने जवाब दिया था कि पागलखाने वाले सारे खुद पागल हो गए थे, तो वो तंग आके और क्या करते, उन्होंने निकाल दिया। उन्होंने कहा बाहर वालों को जाके पागल कर, हमें पागल कर दिया। डॉक्टर साहब पैदल जा रहे हो, बैठो पीछे। बंदा लाहौर का मस्जिद से वापस लाहौर भेजो। वैसे ये सारे पता नहीं को खास कुश्ता खाते हैं मजून के, जितनी मर्जी इनकी हो ना दूसरे दिन फिर तरोताजा आए होते। ये आमिर नजीर बट और सर जिया छोटे रसूल दिमाग दोनों वाले ने की करिए, दिमाग छोटे ने उन्होंने। एक दफा आमिर नजीर चढ़ गया कुतुब मीनार पे, इसने कहा आज तो मैं नीचे कूदूंगा, ठीक है। तो कोई बड़ा समझाया लोगों ने, नीचे खड़े रहे जाहिद जमील साहब जैसे इंसान, जाहिद जमील, उबैदुल्ला लतीफ़, शमसुद्दीन, ये नीचे खड़े हो बुला रहे आमिर नज़ीर को, भाई नीचे उतर जा नीचे उतर जा। आमिर नज़ीर कहा ना मैं तो कूदूंगा। उबैदुल्ला लतीफ़ ने कहा कि यार ये आमिर नज़ीर लगता है पागल हो गया, इसे उतारने के लिए इससे बड़े पागल को बुलाना चाहिए। तो उसने कहा भाई इससे बड़ा पागल कौन है, उसने कहा ज़िया रसूल है, उसे बुलाओ। ज़िया रसूल को बुलाया गया। मुबश्शिर हुसैन ने कहा भाई ज़िया रसूल को बुलाओ, वही है इससे बड़ा पागल, वही उतारेगा इसे नीचे। बहरहाल ज़िया रसूल को बुलाया गया। ज़िया रसूल ने कहा हाँ भाई आमिर नज़ीर नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
आमीर नजीर ने कहा नहीं मैं नहीं आऊंगा नीचे, मैं कूद जाऊंगा। उसने कहा देख ले आखिरी बार कह रहा हूँ, या तो नीचे आ जा नहीं तो अभी काट रहा कुतुब मीनार कैंची से। आमीर ने